Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Good morning. सुप्रभात। Another point we are going to talk about. दूसरे एक मुद्दे के बारे में हम बात करने जा रहे In हैं। the world, people teach one lie, दुनिया में लोग एक झूठ सिखाते हैं and people say that in eternity they are not going to be multiplied. और लोग ऐसा कहते हैं कि अनंत जीवन में लोगों की बस्ती नहीं बढ़ेगी। People say that as angels don't multiply or they don't increase in number. लोग ऐसा कहते हैं जैसे स्वर्गदूत वे गिनती में बढ़ते नहीं। Same way, when Christian or all the believers who are going to inherit the new world, उसी तरह ईसाई लोग जो नए विश्वासी है, जो नई दुनिया में वारिस होंगे, बसेंगे, they are not going to be increased. वे भी उनकी भी बस्ती बढ़ेगी नहीं। They are not going to give children anymore. और फिर से वे वहाँ बच्चे पैदा नहीं करेंगे। So what is the truth? तो सत्य क्या है? Let us study. आइए अभ्यास करें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah means praise the Lord. हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating the word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र Let's करें। seek His face. आइए उसका मुख ढूंढे। Let us ask listening ear आइए सुनने वाले कान मांगे so that we can listen His voice. ताकि हम उसका आवाज सुन सके। Father, once again we are gathered in Jesus' name. पिता, फिर से एक बार हम यीशु के नाम में इकट्ठा We हुए। thank you for calling us near you. आपके करीब हमें बुलाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father, for forgiving our sin. पिता, हमारे पापों को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। You have promised all the word, or you have promised all the blessing, आपने सारी आशीषों का वचन दिया है and we believe in you. और हम आप में विश्वास करते हैं। As you said, heaven and earth can pass away, but not my word. जैसे आपने कहा कि आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन मेरे वचन नहीं। And we believe in you, Jesus. और यीशु, हम आपके बातों में विश्वास करते Thank you हैं। for eternal life. अनंत काल के जीवन के लिए आपका धन्यवाद। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। As we are studying your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे talk हैं with us. तो हमारे साथ बात Holy करो। Spirit, speak with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करो। Bless all who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। One more point we are going to discuss. और 31st point. और एक आगे का 31वां मुद्दा हम आज उसके बारे में बात करेंगे। In the world, a lie is been preached, already been spread. दुनिया में एक झूठ प्रचार किया जाता है और फैलाया जाता है। And people say in eternity, और लोग ऐसा कहते हैं कि अनंत जीवन में where we are going, where the people are going to dwell, जहाँ पर लोग जाकर बसने वाले in the हैं, new world, नई दुनिया में, there will be no children. वहाँ पर बच्चे नहीं होंगे। All people who have believed, they only are going to be there. जो लोगों ने विश्वास किया है केवल वे ही सारे लोग वहाँ पर होंगे। They are not going to bear any more fruit. और वे आगे से फल पैदा नहीं करेंगे। This is a lie already been preached and already people believe this lie. इस तरह का झूठ प्रचार किया जाता है और लोग इस झूठ में मानते Today I हैं। am going to talk about what Bible says. आज मैं बताने वाला हूँ कि बाइबल क्या कहता है। In Luke 20 chapter verse 36, लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 36वां वचन, Jesus Christ said that neither can they die anymore when someone is raised at resurrection day. यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई पुनरुत्थान के दिन जीवित होता है तो वे फिर मरने को नहीं है। They never die anymore, वे फिर से मरते नहीं हैं for they are equal to angels. क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होते हैं। Your Lord Jesus didn't say you are going to be as angel. यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम स्वर्गदूत जैसे बनोगे। Jesus didn't compare the resurrected people with angels. यीशु ने पुनरुत्थान हुए लोगों को स्वर्गदूतों के साथ उनकी तुलना नहीं की। Your Lord Jesus didn't say as angel don't bear children, you are also not going to bear children. जैसे स्वर्गदूत बच्चे पैदा नहीं करते हैं वैसे तुम भी बच्चे पैदा नहीं करोगे, ऐसा प्रभु यीशु ने नहीं कहा। But Jesus said that as angel doesn't die,
लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि जैसे स्वर्गदूत मरते नहीं, you too will not going to die anymore. तो वैसे तुम भी मरोगे नहीं। So Jesus compared human being, resurrected human being with life of angel. तो यीशु ने पुनरुत्थान हुए मनुष्यों के जीवन को स्वर्गदूतों के जीवन के साथ तुलना की, Not with gender or sex. और कोई जाति के साथ तुलना नहीं की। Not that as angel doesn't have any relationship. जैसे कि स्वर्गदूत का कोई संबंध नहीं होता है वैसे तुलना नहीं की। As not angel are having children. जैसे स्वर्गदूतों के बच्चे नहीं होते उस तरह से बात नहीं की। But Jesus said at resurrection, लेकिन यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान के समय में as angel doesn't die, जैसे स्वर्गदूत मरते नहीं, the resurrected people will also be as equal as angel. वैसे ही पुनरुत्थान पाए हुए लोग भी स्वर्गदूत के समान, उनके समान होंगे, एक जैसे होंगे। Verse 36. 36वां In वचन, fact, they cannot longer die कि वे फिर मरने के भी नहीं, because they are like angels. क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे। And since they are sons of the resurrection, they are sons of God. और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। So a question is, will people who are going in that new world going to bear children? तो सवाल यह है कि जो नई दुनिया में जाने वाले लोग हैं, क्या उनको बच्चे होंगे? In eternity, how much population is going to be increased? अनंत काल के जीवन में इस तरह की वृद्धि कैसे बढ़ेगी? If in eternity, if eternal life we are having, how it will be managed? अगर अनंत काल का जीवन है तो ये सारी जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या को कैसे We will manage, how we will, उसकी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? yes, and how will we provide food for those much people? और इतने सारे बढ़ते हुए लोगों के लिए खाना कहाँ से For आएगा? so many people, how much water we need? इतने सारे लोगों के लिए कितने सारे पानी की जरूरत होगी? A simple question, if I ask, एक साधारण सवाल यदि मैं पूछूं, God has created sea. We know that river, sea, water हम जानते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र और नदी ये सारा पानी बनाया for human being life to live. मनुष्य के जीवन को पोषित करने के लिए, उनके जीने के लिए। How much water we have on this earth? इस पृथ्वी पर हमारे पास कितना पानी है? As long human being race comes, मनुष्य जाति की पीढ़ियां जब तक आती है तब तक how much water we need? हमें कितने पानी की जरूरत है? Still God created sea on this earth. फिर भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर समुद्र बनाया। Also God created this sun. और परमेश्वर ने सूरज भी बनाया। How long it can still shine? How long it will shine? What do you think? सूरज कब तक ऐसे प्रकाश देता रहेगा? आप क्या सोचते हो? Just 4,000-5,000 years? क्या 4-5 हजार साल तक? God knew that I'm going to destroy this earth. God already knew sin is going to come and I'm going to destroy the world. परमेश्वर पहले से ही जानता था कि पाप आएगा और मैं इस पृथ्वी का विनाश करूंगा। So why he created such a river and such a sea? तो फिर उसने ऐसी नदियां और समुद्र क्यों बनाया? And he is going to destroy all the human beings. Why he has provided so much water? और जब सारी मनुष्य जाति का वो नाश करने वाला है तो उनके लिए इतना सारा पानी क्यों दिया? And if he is going to destroy this earth and all the heavenly thing, why he has created this sun, which is going to be it is called as a eternal creation. और वह पृथ्वी का और आकाशीय स्थानों का नाश करने वाला है, तो अपनी सृष्टि में उसने इस सूरज को क्यों बनाया? And this sun, it is like an eternal thing. और यह सूरज तो अनंत काल की एक वस्तु के समान है। And it is not going to destroy anymore. It is not going to destroy. और उसका नाश नहीं होगा। How much fuel it is having, it contain. For how long it
it will going to shine or burn. उसके अंदर कितना सारा खनिज होगा कि वह इतना जलता रहता है और कब तक वह ऐसे प्रकाश देता रहेगा। God already made all this thing because he has already planned for a future. परमेश्वर ने ये सारी बातें पहले से बनाई क्योंकि भविष्य के लिए पहले से परमेश्वर के पास योजना है। He has created man and put it on the earth and he has already planned, well planned. उसने मनुष्य को बनाकर इस पृथ्वी पर रखा और उसके लिए उस परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना थी। God have a knowledge, he has a wisdom. परमेश्वर के पास बुद्धि है, ज्ञान है। And without knowledge he didn't create this human being on this earth. और बुद्धि के बिना उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को पैदा नहीं किया In है। Yeshaya 45 verse 18 says, यशायाह की किताब 45वां अध्याय 18वां वचन कहता है, before sin already God has planned. पाप के आने से पहले परमेश्वर ने पहले से योजना की थी। Sin entered and death came. पाप आया और मृत्यु आया। From before God has already planned what to do on this earth. उससे पहले परमेश्वर के पास योजना थी कि इस पृथ्वी पर क्या करना है। And God has blessed human being saying multiply. और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ऐसा कह के आशीष दिया कि बढ़ते जाओ। And he has said cover this earth. और परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी को भरपूर करो। If sin doesn't came, if you just think the sin haven't come, यदि आप ऐसा सोचो कि पाप ना आया होता and तो, there would be any death, और फिर किसी की मृत्यु नहीं होती तो people would be multiply. तो लोग बढ़ते ही रहते। And what later would happen? तो फिर आगे जाकर क्या होता? Yeshaya 45 verse 15-18 says, यशायाह की किताब 45वां अध्याय 18वां वचन कहता है, thus said Jehovah Lord who created the heavens, and God himself who had formed the earth and made it, and he has established it. क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। He has not created or established as a waste. उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, He formed it to be inhabit. परंतु बसने के लिए उसे रचा है। And here God says, I am Jehovah and no one else beside me. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं So है। God has not created this earth void or waste. तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए या बेकार रहने के लिए नहीं बनाया, But created to fill the earth with human being. लेकिन इस पृथ्वी को इसलिए बनाया कि उसे मनुष्यों से भरे। In Jeremiah 29 verse 6, यर्मिया की किताब 29वां अध्याय 6वां वचन कहता है, God says that you should be multiply. परमेश्वर कहता है कि तुम बढ़ते जाओ। Take thy wives and begat sons and daughters. कि ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो। And take wife for your sons and give your daughters to husbands. और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, And they may bear sons and daughters. कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए। And multiply they and be not diminished. और वहां घटो नहीं लेकिन बढ़ते जाओ। In Deuteronomy 7 verse 14, व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 14वां वचन, when God brought this Israel from this Egypt bondage, Egypt, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, He said, I have plan for you. तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास योजना I है। will take you to the promised land. मैं तुम्हें वचन के देश में ले जाऊंगा। And He blessed this, saying, और परमेश्वर ने ऐसा कहकर आशीष दिया, you shall be blessed above all people. कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। There shall not be male or female barren among you or any among your cattle even. तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। In Exodus 23 and verse 26. निर्गमन की किताब 23वां अध्याय 26वां वचन। Again here we read the same thing. फिर से यहाँ पर हम वही बात को पढ़ते हैं। There will be not fruitless or barren ones in your land.
तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, I will fill up the number of your days. और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। If tree can bear fruit, why not people? यदि पेड़ फल पैदा कर सकते हैं तो लोग पैदा क्यों नहीं कर सकते? So God has planned for His own people तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए योजना बनाई that थी they go and inhabit the land, promised land, कि वे जाकर वचन के देश में निवास करें and there they multiply. और वहां पर वे बढ़े। And same way we are also going in a new place. उसी तरह हम भी नई जगह में जा रहे हैं। And all the believer in Hebrew 11 chapter it is said, all the faith heroes, they were seeking for a new world. और इब्रानियों का 11वां अध्याय में ऐसा कहा गया है कि विश्वास के सारे योद्धा वह नई दुनिया को ढूंढ रहे थे। In Psalm 1 and verse 3 says, भजन संहिता पहला अध्याय 3रा वचन कहता है, He shall be like a tree planted by the river of water. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया As है। that planted tree near the river, it bear fruit in its season. Like that person is. और अपनी ऋतु में फलता है, उस तरह से वह व्यक्ति है। His leaf shall not wither, and whatever he does, it shall be prosper. और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता So है। God has blessed His people to multiply, to increase. तो परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दिया है कि वह बढ़े और बढ़ते जाए। So in the new world, Bible says in Yeshaya 65 and verse 17, I am creating new heavens and new earth. The former shall not be remembered. The former thing shall be not be remembered, not it will come in your mind. तो यशायाह की किताब 65वां अध्याय 17वां वचन परमेश्वर कहता है कि क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। So where the new earth is going to be created, तो जहां पर नई पृथ्वी बनाई जाएगी, the people they will rejoice there. वहां पर लोग आनंद करेंगे। Be glad and rejoice forever that which I create. कि जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and his joy, her people a joy. क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित So बनाऊंगा। there will be people in Jerusalem in the new world, and they are going to rejoice. तो यरूशलेम में नई दुनिया में लोग होंगे और वे आनंदित होंगे। What is the rejoice? आनंदित होना क्या है? Verse 19. 19वां वचन, And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. God says. परमेश्वर कहता है मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। Because the people, they are going to rejoice. क्योंकि लोग आनंद करेंगे And the voice of weeping shall be no more. You will hear. और उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई People will पड़ेगा। not cry there. वहां पर लोग रोएंगे नहीं। Verse 20. 20वां वचन, There shall be no more there an infant of days. You will not find children, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा मिलेगा and nor any old man that has not filled his days. और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। You shall find no dead babies. It says like that. It means like that. उसका अर्थ ऐसा है कि वहां पर ऐसे मरे हुए कोई बच्चे तुम नहीं पाओगे, Nor you will find an old man who is about to die. और कोई वृद्ध मनुष्य जो मरने पर है ऐसा नहीं मिलेगा। For childishness or the impure immaturity will end up at 100 days. क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। At 100 years, the childish nature, it will be not found anymore. 100 साल के वर्ष तक वह बचपन का स्वभाव नहीं दिखेगा। Once again, you will be young. You will be again renewed. फिर से आप जवान हो जाओगे, फिर से आपको ताजा किया जाएगा। In Psalm 103 and verse 5 says, your youth is renewed like a eagle. भजन संहिता 103 उसका 5वां वचन कहता है कि तेरी जवानी को उकाब की नाई
नहीं की जाती Again है। in Yeshaya 65 verse 19. फिर से यशायाह की किताब 65वां अध्याय 19वां God वचन। said, I will rejoice in Jerusalem, and because there will be no weeping, no one will cry anymore. परमेश्वर कहता है कि मैं यरूशलेम के कारण मगन होऊंगा, क्योंकि यरूशलेम में कोई लोग रोएंगे नहीं। Verse 20. 20वां वचन। But a sinner, लेकिन पापी, those will be not found with the righteous people. पापी लोग धर्मी लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, For in Psalm 104:35 says, क्योंकि भजन संहिता 104 उसका 35वां वचन कहता many है, sinner vanish from the earth and wicked will be no more. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, या की स्तुति करो। So in the new world there will be no sinner. तो नई दुनिया में पापी लोग नहीं होंगे। In Psalm 118 verse 20. भजन संहिता 118 उसका 20वां वचन। This is the gate of Jehovah, the righteous shall enter into it. यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। Only righteous will be found there. वहां पर केवल धर्मी लोग मिलेंगे। 2 Peter 3rd chapter verse 13. दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 13वां वचन। Here Peter says, यहाँ पर पत्रस कहता है, we are looking, seeking for new heaven and new earth, where righteousness shall have its home. कि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। So God is going to put all the righteous there in the new world. तो परमेश्वर उस नई दुनिया में सारे धर्मी लोगों को रखेगा। Now how this sinner word came in this Yeshaya 65 verse 20? तो यशायाह 65वां अध्याय 20वें वचन में यह पापी शब्द कैसे आया, कहां से आया? But the sinner being 100 years old shall be accursed. कि पापी 100 वर्ष का होकर भी श्रापित होगा। Many interpret this way. बहुत लोग इस तरह से इसका भाषांतर करते हैं। They say, if he that is 100 years of age do any wrong, he shall be cursed. लोग ऐसा कहते हैं, यदि वहां पर कोई 100 साल का बूढ़ा हो जाएगा और पाप कर बैठे तो वह श्रापित होगा। And one who falls short 100 years will be considered accursed. परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। He who dies within 100 years will be counted as a curseful person. जो व्यक्ति 100 साल से पहले मर जाए उसे श्रापित व्यक्ति माना जाएगा। The truth is, सच्चाई यह है you will find there will be no death. कि वहां पर मृत्यु होगा ही नहीं। There will be no death anymore. वहां पर मृत्यु नहीं होगा। Now how this word death came in this Yeshaya 65 verse 20? तो यशायाह की किताब 65वां अध्याय 20वें वचन में यह मृत्यु शब्द या मरा हुआ व्यक्ति के बारे में कैसे बात आई? For as if we read, but the sinner being 100 years old shall be accursed. कि पापी 100 वर्ष का होकर भी श्रापित ठहरेगा। And those who are, how can anyone die or how can there be curse? वहां पर कोई कैसे मर सकता है और कैसे श्रापित हो सकता है? Verse 20. 20वां वचन। It is talking about another place. यह दूसरी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। He is comparing with another place. वह दूसरी जगह के साथ इसकी तुलना कर If रहा you read है। further, यदि आप आगे पढ़ो तो how it says. वह आगे क्या लिखा गया? Okay, verse 19. 19वां वचन। There will be no more from there. There will be no more from there an infant of days, nor we will find any old man who has not filled his days. 20वां वचन उसका पहला भाग, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। Again, further it says, no more sorrow means no more losing our beloved. और आगे ऐसा लिखा गया है कि वहां कोई दुख नहीं होगा। उसका अर्थ है कि हमारे प्रिय व्यक्ति को खोने का नहीं होगा वहां। For the youth time, it will end up at 100 years. क्योंकि जो जवानी के दिन है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। But those who are sinner in the fire that hell, they are going to be called accursed one. लेकिन जो लोग दूर नरक में पापी लोग होंगे उनको श्रापित कहा जाएगा। Verse 21. 21वां वचन। They shall build houses here in the new world. वे इस नई दुनिया में घर बनाएंगे And also they will inhabit there. और वहां पर बसेंगे भी। They will plant vineyard and they will eat the fruit of them.
वे दाख की बारियां भी लगाएंगे और उसके फल भी खाएंगे। Verse 22. 22वां वचन, This is a blessing to this world. यह आशीष है इस दुनिया के लिए They shall not build and another will inhabit. It will not be like that. कि ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएंगे और दूसरे आकर बसेंगे। So in another world they will build and another will inhabit, or another is going to dwell. और दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह में वही लोग बनाएंगे लेकिन दूसरे आकर बसेंगे। They will plant there and another will eat in that another hell, in the another world. वह दूसरी जगह नरक में वे लोग बोएंगे लेकिन दूसरे लोग आकर खाएंगे। So here the writer is comparing two places. तो यहाँ पर लेखक दो जगह की तुलना कर रहा है। One, there will be a holy people. एक ऐसी जगह कि जहाँ पर पवित्र लोग होंगे, The people will build and they will go to stay there. लोग वहाँ पर बनाएंगे और वहाँ बसेंगे। But in another world they are going to build and another are going to dwell. लेकिन दूसरी जगह में वे लोग बनाएंगे लेकिन उसमें दूसरे लोग आकर बसेंगे। In the new world, godly world, God world, people are going to plant and they will eat. नई दुनिया जो परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया होगी, वहां पर परमेश्वर के लोग बनाएंगे और उसमें बसेंगे भी। But another place they are going to plant and another going to eat. लेकिन दूसरी जगह में वे लोग अगर बनाएंगे लेकिन दूसरे लोग आकर बसेंगे। So here it is a comparison. तो यहाँ पर यह तुलना है For as the days of the tree are the days of my people will be. कि जैसे पेड़ की उम्र होती है वैसे मेरे लोगों की उम्र होगी। And my selected people shall long enjoy the work of their hands. और मेरे चुने हुए लोग अपने कामों का पूरा लाभ Verse उठाएंगे। 23. 23वां वचन, They will not labor in vain. They are not going to bear child doomed to disaster. उनका परिश्रम वहां पर व्यर्थ न होगा और न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, विनाश के लिए उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे। The word used labor, it means to bear something. वहां पर शब्द उपयोग किया गया है परिश्रम, उसका अर्थ है कि कुछ पैदा करना। And they are not going to labor or do something or hard, going to go through pain and bring out disaster. वे लोग दुख उठाकर कुछ ऐसा पैदा नहीं करने वाले और जो विनाश के लिए जाए ऐसा पैदा कुछ नहीं करेंगे। So we learn that they are going to give birth. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि वे बच्चे पैदा करेंगे, But not for trouble. लेकिन घबराहट के लिए या परेशानी के लिए नहीं। When Esau, son of Isaac and Ribkah, he married a Hittite woman, this family was upset. जब रिबेका और इसहाक का बेटा एसाव ने हित्ती स्त्रियों से शादी की तो यह परिवार के लोग परेशान हो गए। In Genesis 27 verse 46, उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय 26वां वचन, Rebekah said to Isaac, I do not like living with his Esau's wife. रिबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। So we see parents are as if they are giving woe to themselves. तो हम माता पिता को देखते हैं कि जैसे कि वे अपने आप को अफसोस कर रहे हैं We are having such child who did a wrong thing. कि हमारा ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने गलत काम किया। So in Yeshaya 65 verse 23 says, तो यशायाह की किताब 65वां अध्याय 23वां वचन कहता है, those who will be in the new world, they will not bear child for terror. कि जो नई दुनिया में आने वाले लोग हैं वे घबराहट के लिए बच्चे पैदा नहीं करेंगे, For this, they are the seed of the blessed of Jehovah, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे and their offspring will with them. और उनके बाल बच्चे उनके साथ रहेंगे। So they will be the people blessed called God people. तो उनको परमेश्वर के आशीषित लोग कहा जाएंगे। They and their descendant with them are going to call blessed of God. उनको और उनके बाल बच्चों को परमेश्वर के धन्य लोग कहा So we जाएंगे। see that the people who are going to stay in eternity, they are going to bear children. तो
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अनंत काल में बसने वाले लोग हैं वे बच्चे पैदा करेंगे and it will be multiplied. और वे बढ़ते जाएंगे. 1 Corinthians 7 verse 36 says, पहले कोरिन्थी का पत्र 7वां अध्याय 36वां वचन कहता है, here Paul says that when someone marry, it is not mentioned or considered as sin. यहाँ पौलुस बताता है कि यदि कोई शादी करता है तो उसे पाप नहीं माना जाता. And that was not sin if someone get married. यदि कोई शादी करता है तो वह पाप नहीं कर रहा Let है. him do what he will. He sins not. Let them marry. और तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे. So we learn when someone come together, it is not called sin. तो हम सीखते हैं कि जब दो लोग जुड़ते हैं तो वो पाप नहीं It है, is a blessing of God. वह परमेश्वर की आशीष है. In 1 Timothy 5 chapter verse 14 says, पहले तिमोथी का पत्र 5वां अध्याय 14वां वचन कहता है, here Paul advised to this Timothy's church. यहाँ पर पौलुस यह तिमोथी की कलीसिया को सलाह देता है. Timothy, you are the leader, you are the teacher, you are the pastor. तिमोथी तू आगेवान है, शिक्षक है, पासवान है. I advise you, give advice to the young widows to marry and have children. कि मैं तुझे इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाओं ब्याह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले. तू ऐसी सबको सलाह दे. The word is not child, but it is they should bear children. यहाँ पर एक वचन बच्चा शब्द नहीं है, लेकिन बहुवचन बच्चे शब्द है. So Paul he says it is a blessing. तो पौलुस कहता है कि यह आशीष है. Yes, Psalm 127 verse 3. भजन संहिता 127 उसका 3रा वचन. Here it says, children are called heir of Lord. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि बच्चे तो यहोवा के दिए हुए भाग है, The वारिस है, reward, the fruit of the womb. और गर्भ का फल है. Psalm 128 and verse 6. भजन संहिता 128 उसका 6ठा वचन. This is a blessing. यह आशीष है. Peace be upon Israel. इज़राइल के ऊपर शांति रहे. And may you see the sons of your sons. कि वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए. So this is a blessing. The see children. तो यह आशीष है कि बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे. We know Job. He saw the 4th generation. हम अय्यूब को जानते हैं कि उसने 4थी पीढ़ी तक देखा. Genesis 1st chapter verse 26. उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन. God said, let us make man in our image and our likeness. That was the thought of God. परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए. यह परमेश्वर का विचार था. And God had blessed, saying, और ऐसा कहकर परमेश्वर ने आशीष दी. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. परमेश्वर ने उनको ऐसा कहकर आशीष दी कि फलवंत हो जाओ, बढ़ो और पृथ्वी को भरपूर करो. So we learn, before sin, God has blessed mankind to multiply. तो हम सीखते हैं कि पाप आने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आशीष दी थी कि वे बढ़ते जाए. But when sin came, लेकिन जब पाप आया, death came, मृत्यु आई. and so God had already planned, already had said, I will destroy this earth. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में फिर कहा कि मैं पृथ्वी का नाश करूंगा. Already he has planned that multiply, that was a blessing. उसने पहले से योजना बनाई थी कि वे बढ़ते जाए और वह आशीष थी. God never created Adam and Eve without blessing. परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष के बिना नहीं बनाया था. Already God has given them productive organs to and before sin came. परमेश्वर ने पाप आने से पहले ही उनको बच्चे पैदा करने वाले अंग दिए थे. So that they can obtain of kinds according to their kind. ताकि वे अपने स्वरूप के अनुसार दूसरे बच्चे पैदा करें. Genesis 1st chapter verse 11. उत्पत्ति पहला अध्याय 11वां वचन. It says that God says that when God created these plants, tree and herbs, here it says all their seed were within itself. जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे और सब वनस्पति बनाई तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उनका बीज उनमें रहे. So already man
human beings are going to grow, going to fill the earth, so they are having seed in within themselves. मनुष्य जाति पृथ्वी को भरपूर करने वाले हैं, इसीलिए उनके शरीर के अंदर ही वह बीज है। In Yeshaya again 45 verse 18. यशाया की किताब 45वां अध्याय 18वां वचन। Again we read the same. Again we are going to we read the same thing. फिर से हम वही बात पढ़ने जा रहे हैं। He has established this earth or created this earth not in vain, but he formed it to inhabit. कि उसने इस पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसमें लोग बसे इसीलिए बनाया। Yeshaya Psalm 115 and verse 16 says, "This heaven is of Lord, and but the earth He has given it to the children of man." भजन संहिता 115वां अध्याय 16वां वचन कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। God has given it as a gift to man. परमेश्वर ने यह पृथ्वी मनुष्यों को तोहफे में दी है, To rejoice and to live here forever. यहाँ पर हमेशा वे बसे और आनंद करे इसीलिए। In Psalm 72 and verse 19 says, भजन संहिता 72वां अध्याय 19वां वचन कहता है, "And blessed be his glorious name forever. उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य And रहेगा, let the whole earth be filled with his glory." Amen and amen. और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। So God has created this earth and given it to human beings so that they multiply, enjoy and know their God. तो परमेश्वर ने यह पृथ्वी मनुष्य जाति को दी ताकि वे इसमें बसे और बढ़े और अपने उत्पन्नकर्ता को जाने और उसकी महिमा करे। So God has blessed human being to multiply. तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आगे बढ़ने के लिए आशीष दी है And fill this earth. और पृथ्वी को भरपूर करे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा That हो। was planned from before. यह पहले से ही योजना थी। Praise the Lord. प्रभु का That महिमा हो। man live forever and ever. कि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, Never die. कभी मरे नहीं, But multiply and fill this earth लेकिन with the beautiful people. लेकिन बच्चे पैदा करे, बढ़ते रहे और इस पृथ्वी को सुंदर लोगों से भरते रहे। Amen. आमेन। So this is the truth. तो यह सत्य है। This is the revelation from the church. यह कलीसिया की ओर से प्रकटीकरण है, ज्ञान है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें, For what he has planned, he is going to accomplish in the new world. क्योंकि उसने जो कुछ भी योजना बनाई थी वह नई दुनिया में पूरी करेगा। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते For हैं, you have promised your people क्योंकि आपने आपके लोगों को वचन दिया है and you have blessed your people. और आपके लोगों को आपने आशीष दी है। And whatever you had desired, you have fulfilled it. और आपकी जो कुछ भी इच्छा थी आपने वह पूरी की है। And we believe in your word. और आपके वचन में हम विश्वास करते We हैं। are going to multiply in the new world. हम नई दुनिया में बढ़ने वाले हैं And we are not going to die anymore. और हम फिर से मरने वाले नहीं। And you are going to wipe our tears. और आप हमारे आंसुओं को पोंछोगे। And we believe that you are going to bless us with fruits and fruits. और हम विश्वास करते हैं कि आप हमें फल और ज्यादा फल देकर आशीष दोगे। Thank you, Jesus Christ, for this truth. यीशु मसीह इस सत्य के लिए आपका धन्यवाद। For life, जीवन के for लिए, enjoyment, आनंद के लिए, for everything, we worship you. सारी बातों के लिए हम आपकी आराधना करते We हैं। know in this world we are going from trials and through pains. हम जानते हैं कि इस संसार में हम दुखों से और परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, But the time is going to come where we will rejoice forever. लेकिन ऐसा समय आ रहा है कि जहां पर हम हमेशा के लिए आनंद करेंगे And we believe in eternal life. और हम अनंत काल के जीवन में विश्वास And करते we हैं believe in the new world. और हम नई दुनिया में विश्वास करते हैं। Bless us. Bless us. हमें आशीष दो। Bless all who are watching, who are listening. जो लोग सुन रहे और देख रहे हैं सबको आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम They में। be blessed with the truth. वे सत्य से आशीषित हो जाए Receive the truth. और सत्य का स्वीकार करें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught.
आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करते Our रहे। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो, is in heaven, let it be on जैसे earth. स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है, for our Father you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Praise दे। God. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए आपका धन्यवाद। Praise God. Shalom. शालोम।